Okay, in the last lecture we have started the types of operating system. Okay, what is operating system? It is an interface between the user and hardware. Okay, and it handles the all the execution, all kind of execution of the programs in the system. Yes, what happened, Sakib? Yes, Sakib. Yes, any doubt, Sakib? Otherwise, mute yourself. Okay, okay, thank you. Yes. So first of all, we have started with the batch operating system. Yes, we will tell in the short what is batch operating system. What is batch operating system? What do you understand? Ma'am, Uh, yes. the users of a batch operating system don't interact with the computer directly. Okay. Yes. Then Ma'am, examples of batch-based operating system is payroll system, bank statements, etc. yes, very good. Okay. Yes. Yes. Any other students? Hmm? Any other students want to try? Yes, students. See, whatever you know, you can tell. Okay, ऐसे नहीं कि perfect. I want perfect answer. Okay, no. Whatever you have understand, you can explain or you can give the answer in your own words. ठीक है, ऐसे नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मुझे चाहिए. आपको क्या समझ में आ रहा है? That is important. Okay, you can give the answer in your own words. आप own words में on हिंदी में भी you can give the answer. ठीक है, बट मेरा मेन कंसेप्ट क्या है, स्टार्टिंग है, तो यू शुड नो ऑल द कंसेप्ट. ओके, तो व्हाट यू कैन, हाउ यू कैन remember regarding batch operating system. So first of all, you have to understand कि batch operating system was the old operating. Okay, it is an old operating system. Now we cannot use the batch operating. We are not using the batch operating system. Okay, it was used in 1970s. Okay, वो time पे use होता था. The second point that is regarding batch operating system. In this system, operating system does not interact with the computer directly. मतलब ये operating system जो था वो computer system में directly install नहीं था. This is the second point. What is the third point? कि there is a one operators. एक operator होता है, ठीक है? In this operating system there is a one operators. Okay, which takes the input. Okay, आप अपने own words में याद हो सकते हो, which takes the input from the users. Okay, यूजर से इनपुट लेता था, देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता था, इनपुट सबमिट करता था. ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बैच बना के उसको या तो ऑपरेटर उसका जॉब बना के ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट करता था, देन कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता था. इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर दिस सिस्टम. ओके, तो उसमें ऑपरेटर इन्वॉल्व नहीं था, उसमें जो जॉब्स मतलब जो इनपुट्स आ रहा था, जो सेम इनपुट्स जो है, ठीक है, सेम कैटेगरी के जो इनपुट्स है, इनपुट्स मतलब क्या, कमांड जो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है. किसी को प्रिंट करना है तो प्रिंट वाले जो कॉमन जॉब्स यू कैन से, और प्रोग्राम्स यू कैन से, और इनपुट्स यू कैन से. ओके, उसका एक ग्रुप बनता था. स्कैन करना है तो जितने भी स्कैन करना है डॉक्यूमेंट्स, उसका एक ग्रुप बनाते थे. मतलब जो सिमिलर इनपुट, जो सिमिलर जॉब है, ठीक है, उनका क्या करता था ऑपरेटर, एक जॉब्स एक बैच क्रिएट करता था, ग्रुप्स बनाता था. ओके, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस करता था, ठीक है. देन हमको उसका भी जो आउटपुट है वो आउटपुट मतलब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करके वी गेट द आउटपुट. ओके, तो इन दिस वे you can remember. Okay, batch operating system. The second is that is a multi-programming operating system. Okay, what is multi-programming operating system? कौन देगा आंसर? What is multi-programming? एक से ज्यादा प्रोग्राम रन करता हूँ. Yes, एक से, yes साकिब, yes, एक से ज्यादा प्रोग्राम से रन करते हैं, बट कैसे करता है, हाउ? क्योंकि मल्टीटास्किंग भी वही है हमारा, जो थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही है कि एक से ज्यादा काम करता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग में? एक डिफरेंस है. ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस? 1 by 1 program run होता है. यस पूनम, वेरी गुड. ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि मल्टीपल प्रोग्राम्स विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी. मतलब ओके, तो यूजर्स के जो इनपुट्स हैं, ओके, यूजर ने जो भी इनपुट्स दिया, वो इनपुट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक साथ मेन मेमोरी में स्टोर करता है, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा सीपीयू वन बाय वन.
After completing one task, then CPU will execute second, then CPU will execute third. Okay, तो मेमोरी जो है, मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशंस के फॉर्म में होता है. ठीक है, मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे इन द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स चैप्टर में कि व्हाट इज मेमोरी, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. ओके, मेमोरी क्या होता है, कैसे फॉर्म में डेटा उसमें स्टोर होता है, ऑल रिगार्डिंग वी विल लर्न. बट अभी आपको याद रखना है कि मेमोरी जो है वो पार्टीशंस के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है. ओके, सेक्शंस रहते हैं और हर एक सेक्शन का एड्रेस होता है. तो मेमोरी में जितने भी मल्टीपल जॉब्स आ रहे हैं, मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं फ्रॉम द यूजर्स से, वो इंस्ट्रक्शंस को कहाँ पे स्टोर करते हैं, मेमोरी में. ठीक है, then one by one CPU will execute that job or input from the memory. Okay, so that is a multitasking operating system. और इसमें operating system is installed in the computer system. Okay, okay. And third is multitasking operating system. Okay, तो multitasking operating system में क्या होगा, operating system जो है, sorry, CPU जो है, that will execute users input और program simultaneously. एक साथ वो एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, मतलब अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, विंडोज जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, व्हाई, बिकॉज वी कैन डू द मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, मैंने डाउनलोडिंग के लिए कुछ रख दिया, डाउनलोडिंग भी होगा मेरा. ठीक है, जूम भी चल रहा है, आपको वर्ड फाइल भी बता रही हूँ. यहाँ पे मैंने एक ब्राउजर ओपन करके उसमें व्हाट्सएप भी ओपन करके रखा है, एक फोल्डर ओपन करके रखा है मैंने. ठीक है, तो आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स साइमल्टेनियसली. दैट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. वो क्या है हमारा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, क्लियर. अभी जो हमारा विंडोज है, विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली. ओके, और सीपीयू जो है वो भी उसको कैसे एग्जीक्यूट कराए, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कराए. ठीक है, मतलब मेमोरी में ये सारी चीजें भी है, जूम भी, मेन मेमोरी में भी जूम भी चल रहा है, वर्ड भी चल रहा है. ठीक है, ये जो पे आप मैं कुछ ब्राउजर ओपन करके रखा है वो भी हो रहा है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो रहा है. Okay, but again there are two types of multitasking operating system: cooperative multitasking system and primitive multitasking operating system. Now, okay, what is cooperative multitasking operating system? कि CPU एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, सीपीयू अभी ये सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, बट है तो सीपीयू, वी हैव ओनली वन सीपीयू ना, हमारे पास कितना सीपीयू, वन सीपीयू. फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको ये फोल्डर जो उसको मैंने मिनिमाइज करके रखा है. ठीक है, आई हैव मिनिमाइज दिस फोल्डर. ठीक है, तो अभी ऑटोमेटिकली ये फोल्डर में जो भी प्रोग्राम्स है वो क्या करेंगे, सीपीयू को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि अभी वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है. ठीक है, अभी करंटली जूम के पास सीपीयू किसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जूम. ओके, एंड दिस वर्ड फाइल. ओके, ब्राउजर में मैंने कुछ डाउनलोडिंग के लिए रखा, तो आफ्टर डाउनलोडिंग जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली सीपीयू को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, बिकॉज जो मल्टीपल टास्क जो है, तो मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग. ओके, वो क्या करेंगे, अपना काम होने के बाद ऑटोमेटिकली सीपीयू को रिलीज छोड़ देंगे. व्हाई, बिकॉज सीपीयू को फिर अदर टास्क करने के लिए वो परमिशन देगा. ओके, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव multitasking operating system. ठीक है, see, a Windows program would do some small unit of work in response to a message. Okay, in response to a message. For example, यहाँ पे मैंने, I am opening this browser, ये मैंने ब्राउजर ओपन किया. ठीक है, ये ओपन किया यहाँ पे, तो अभी मैं इसको एक्सेस करी, तो सीपीयू अभी किसको एग्जीक्यूट करा है, ब्राउजर को. तो उसने वर्ड ने भी क्या कर दिया, सीपीयू को रिलीज कर दिया. ठीक है, सीपीयू को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया. अभी मैं ये आई एम मिनिमाइजिंग दिस. ठीक है, मिनिमाइज कर दिया, तो अभी जो ब्राउजर है उसने सीपीयू क्या कर दिया, रिलीज कर दिया. ओके, तो जो प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली सीपीयू को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स वर्क. दैट इज अ कोऑपरेटिव multitasking operating system. This all are the background process, students. Okay, I am explaining to you background process. हमको कुछ नहीं करना, हमको जैसे हमको जो काम करना है that we will do. ठीक है, we all जो भी हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, only we are doing our things. ठीक है, ये जो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, that is the background process that is done by the operating system automatically. But as a students, IT student, we should know कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. हमको तो दिख रहा है कि ये सारी चीजें हम लोग एक साथ कर पा रहे हैं, बट कैसे हो रहा है, तो ऐसे कि सपोज अभी मैंने ब्राउजर ओपन किया. ठीक है, मैं कुछ टाइप करता हूँ, सीपीयू करंटली क्या एग्जीक्यूट करा है, दिस वन. ओके, मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया. नाउ ये जो ब्राउजर है वो रिलीज कर देगा सीपीयू को, तो सीपीयू ना किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये वर्ड फाइल को.
फॉर एग्जांपल अभी जूम को मैंने कुछ सिलेक्ट किया, ओके, तो जो कमांड्स मैं दे रही हूँ तो सीपीयू किसका एग्जीक्यूट करा है, जूम को, ठीक है। तो अभी थर्ड टाइम के लिए जूम ने उसको रिलीज कर दिया, अभी किसको मैं कर रही हूँ, वर्ड फाइल कुछ चेंजेस, आई एम डूइंग द चेंजेस, ओके। तो कोऑपरेटिव मतलब क्या, जो मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे साइमल्टेनियसली, वो प्रोग्राम सामने से सीपीयू को रिलीज कर देंगे फॉर थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। The Windows program would do some small unit of work in response to a message and then relinquish मतलब कि छोड़ देना, okay, CPU को छोड़ देना, relinquish the CPU to the operating system until the program got another message, okay। मतलब जो जो कमांड्स, जैसे हम कमांड देंगे करंटली सीपीयू वो एग्जीक्यूट करेगा, that work well as long as all programs were written with consideration of other programs and had no bugs, okay, कोई without प्रॉब्लम्स, ओके। बग्स मतलब क्या, कोई फेलर है तो कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा, उसको हम लोग बग्स बोलते हैं, ठीक है। तो विदाउट प्रॉब्लम्स वी कैन रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी, हाँ, दैट इज अ कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, ठीक है। कोऑपरेटिव मतलब क्या, जितने भी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन हो रहे, वो सारे प्रोग्राम्स क्या करेंगे, अपना काम खत्म होने के बाद, या तो उसको और कोई न्यू कमांड नहीं मिलता तब तक वो सीपीयू को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशन, क्लियर। दैट इज अ कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, क्लियर। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, ओके। ये बैकग्राउंड, सी स्टूडेंट, दिस इज अ बैकग्राउंड प्रोसेस, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, बैकग्राउंड मतलब क्या, जो हमको नहीं दिख रहा है, ओके। हमको तब भी क्या दिख रहा है कि वी कैन डू जूम भी, वी कैन एक्सेस वर्ड फाइल भी, वी कैन एक्सेस दिस फोल्डर, आई कैन एक्सेस, तो ब्राउजर में मैं कुछ डाउनलोड के लिए तो कुछ सर्च करूँ, तो दिस इज अ, अब मेरा टास्क में जो है वो एग्जीक्यूटिंग हो रहा है, ठीक है। बट जब मैं इस पे क्लिक करी तो सीपीयू अभी करंटली क्या एग्जीक्यूट करा है, दिस वन, ओके। तो ये वर्ड फाइल ने छोड़ दिया सीपीयू को, नाउ व्हेन आई विल ओपन दिस वर्ड फाइल, ओके, तो सीपीयू नाउ एग्जीक्यूटिंग दिस फाइल, तो ये जो ब्राउजर में मैंने ओपन किया था वो उसने सीपीयू को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, हुआ है, बिकॉज सीपीयू तो एक ही है, वो तो एग्जीक्यूट एक ही काम करेगा ना एट ए टाइम पे, ओके। तो जो प्रोग्राम्स जो है वो अपना अपना काम खत्म होने के बाद सीपीयू को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, व्हाई, बिकॉज मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करा है प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, क्लियर, क्लियर, यस और नो, Yes, ma'am. okay, okay, yes, so that is a cooperative multitasking, and the second is primitive multitasking, okay, second is primitive multitasking. So what is a primitive, what is the meaning of primitive? The operating system have to tell the programs that now you have to release or you have to release the CPU, operating system को बोलना पड़ता है, programs खुद से CPU को release नहीं करेंगे, operating system have to tell, okay, the programs okay, now please release the CPU now, this program will use the CPU, तो CPU will execute this program, that is a primitive multitasking, उसको क्या बोलते हैं, primitive multitasking, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको बोलना पड़ता है प्रोग्राम्स को कि नाउ प्लीज अभी आप स्टॉप कर दो और ये प्रोग्राम रन होगा, ओके, दैट इज अ प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूनिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, जैसे विंडोज है, एंड्रॉइड है, वैसे यूनिक्स इज वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स जो है दैट इज अ प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमको मल्टीपल टास्क को करने दे रहा है, बट वो जब हम लोग मल्टीपल टास्क ओपन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज वर्ड फाइल क्लोज कर दिया है, एक्सेसिंग दिस एक्सएमएल, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, उसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या बोलना पड़ता है कि नाउ अभी आपको नहीं, इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को बोलेगा कि आपको अभी सीपीयू छोड़ देना है, रिलीज करना है, ओके। तो ये जो प्रोग्राम ओपन है, तो ये जो ब्राउजर ओपन है उसको ऑपरेटिंग, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, अगेन आई एम ओपनिंग वर्ड फाइल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ब्राउजर को बोलेगा नाउ अभी आपको सीपीयू छोड़ देना है, दिस इज अगेन आल्सो बैकग्राउंड प्रोसेस, ये सब हमको नहीं दिखता है, ऑल थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट टू अस, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग जो है वो कहाँ पे, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, it is a type of primitive multitasking. Unix is an operating system. Unix and Linux we will learn in the semester फिफ्थ में, कुछ तो आपको सब्जेक्ट है पूरा लिनक्स करके, उसमें आप लोग डिटेल्स में पढ़ोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द यूजर इंटरफेस कैसा है उसमें, ओके, वो बाद में आप लोग देखेंगे, जैसे अभी विंडोज है वैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो विंडोज जो पहले विंडोज एनटी, ओके, एंड विंडोज 95, ठीक है, विंडोज का जो 95 वर्जन एंड विंडोज का एनटी जो
वर्जन है, ठीक है, ऑल आर सपोर्टिंग प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। ओके, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम तो जैसे नॉर्मली यूज करते सिस्टम वैसे यूज करेंगे, बट बैकग्राउंड में जो है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स कैसे रन हो रहे हैं, कैसे वो एक प्रोग्राम से सेकंड प्रोग्राम पे स्विच हो रहा है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करे, दैट इज अ डिफरेंट, वो डिफरेंट है। ओके, हमको तो ऐसे ही लगे, हमको तो सेम ही लगेगा, वी कैन नॉट गेस कि ये कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग है कि ये प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग है। ओके, ये हमको नहीं पता, हम तो जस्ट हमारा सिस्टम यूज कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स वी आर ओपनिंग, वी आर एक्सेसिंग दैट मल्टीपल प्रोग्राम्स। ओके, हमको तो यही लग रहा है, यस दिस इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो कोऑपरेटिव है कि प्रिमिटिव है वो हमको नहीं समझ में आता, ठीक है। बट यस, नाउ एज आईटी स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए कि विंडोज एनटी और विंडोज 95 और मैकिंटोश और यूनिक्स ऑल आर द प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। व्हाई? बिकॉज in this type of operating system have to tell the programs that now you should stop, now another program will get the CPU, that is a primitive multitasking। okay, and अभी जो हम लोग यूज करें दैट इज अ कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। ये हमारा जो विंडोज 7 है और विंडोज का कोई भी वर्जन एक्सेप्ट एनटी और 95 और ये छोड़ के ऑल आर दी कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का टू टाइप्स है, कोऑपरेटिव एंड प्रिमिटिव। किस पे बेस पे ये डिवाइड किया हुआ है? जो प्रोग्राम सीपीयू जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट मल्टीटास्किंग का ये टू टाइप्स डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, try to understand students, okay, when you will read this, okay, आपको जब भी एक बार उसको रीड करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। you have to read, okay, मैंने आपको बोला है at the end of the day you have to read once all these things जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं, okay, you have to read, एक बार आपको उसको रीड करना ही करना है। this is compulsory for all the students, okay, मैंने ऑलरेडी ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अगेन टुडे आई विल सेंड दिस नोट्स टू द गूगल क्लासरूम, वीडियो लेक्चर्स भी डाल दूंगी, तो आपको रोज का पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट सैटरडे संडे, ओके, पूरा वीक में जो भी हम लोगों ने पढ़ा दैट यू हैव टू रिवाइज ऑन द सैटरडे एंड संडे, आपको रिवाइज कर लेना है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे रिवाइज करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको ज्यादा लोड नहीं आएगा। ओके, तो रिवाइज करो। ओके, यस, बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदा है, ठीक है, what is the advantage, what is the benefits? So in multitasking operating system, memory, hard drive and virtual memory। now what is virtual memory वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, just remember the word virtual। virtual मतलब क्या? जो भी रियल में एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। virtual मतलब क्या? जो रियल में नहीं है। we will guess कि yes ऐसा कुछ है, okay, so we will learn in detail about the virtual memory, ठीक है। बट अभी याद रखो इतना कि वर्चुअल मेमोरी मतलब जो रियल में मेमोरी नहीं है। वी विल गेस, हम लोग गेस करेंगे तो सिस्टम उनका इल्यूजन क्रिएट करेगा कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज देयर, बट वो एक्चुअल में अवेलेबल नहीं होता, फिजिकली अवेलेबल नहीं होता। In multitasking operating system, memory, hard drive, and virtual memories are better managed. Okay, processor time is also well used as the waiting time is less. Okay, programs जो उसको wait नहीं करना पड़ता ज़्यादा, because multiple programs execute simultaneously. Suppose any user is downloading any file from the internet, now he can do other tasks on the computer without waiting for the file to be download completely. Yes, okay, ये practically हमको पता है, हम लोग करते हैं, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग के लिए मैंने रख दिया तो मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है उसको डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के लिए। आई कैन स्टार्ट माय अनदर वर्क। ओके, one process cannot change the data of another process in the main memory, this is the benefit। okay, मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स स्टोर किया हुआ है, मल्टीपल प्रोग्राम सीपीयू स्विच हो रहा है, ठीक है, एक प्रोग्राम से सेकंड प्रोग्राम में, तो वन प्रोसेस जो है वो सेकंड प्रोसेस का जो डेटा जो है, ओके, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। each process can only use its own space allocated। okay, मेमोरी में हम लोग देखेंगे how to allocate memory to the process, प्रोग्राम को मेमोरी कैसे allocate करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस को अपना खुद का एक एड्रेस है मेमोरी, उसमें हम लोग स्टोर करते हैं। मेमोरी डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस, ओके, डेटा जो है वो पार्टीशंस में स्टोर होता है मेमोरी में। तो हर एक प्रोग्राम प्रोसेस डेटा को क्या है, पार्टीशंस दिया जाता है, जैसे हमको एड्रेस दिया गया, ठीक है। या तो इन कॉलेज, जब हम लोग कॉलेज जाएंगे तो FYIT का दिस इज FYIT क्लास, दिस इज SYIT क्लास, TYIT क्लास, अलग अलग क्लासेस दिया हुआ है। तो FY के स्टूडेंट क्या है, FY की क्लास में ही बैठेंगे, SY के स्टूडेंट्स विल सीट इन SY क्लास, सेम TY के। तो हर एक को अपना अपना स्पेस दिया हुआ है। तो सेम वैसे जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, every program has an address या तो every program has stored in the memory। okay, हर एक
उसको मेमोरी में स्टोर किया हुआ तो एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। इफ एनी प्रोग्राम जनरेट्स एरर्स, okay, if any program generates error, then other programs running on the computer are not affected by it when we are using the multitasking operating system, ठीक है। For example, if your Google Chrome has crashed, then your data in the MS Word is not affected, yes, ठीक है। ये simultaneously यहाँ पे Word भी चल रहा है, यहाँ पे Google भी चल रहा है। जो Google मेरा वर्किंग स्टॉप हो गया तो Google में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बिकॉज ऑफ दैट माय वर्ड फाइल में कुछ अफेक्ट नहीं होगा, मेरा वर्ड फाइल कुछ उसका इशू क्रिएट नहीं होगा, ओके। So that is the thing. This is the advantage. Every user can run their own programs independently of the other users. Okay, every user can run their own program independently of the other users. Okay, we can create the account. Okay, हम लोग इसमें accounts create कर सकते हैं. User accounts we can create. Okay, multiple application can run on the smartphone and they use multitasking techniques. ठीक है, आपका जो Android is also multitasking, you can say. ओके, आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो ना, फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है, स्मार्टफोन में। ओके, आपको सपोज यू आर यूजिंग एनी ऐप या तो कुछ साइन इन कर रहे हो तो यू आर गेटिंग दी ओटीपी, तो आप ओटीपी देखने के लिए मैसेज में स्विच कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन आप वो ऐप पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग उसमें भी यूज हो रहा है। ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओके। ईच टास्क, सी स्टूडेंट, कभी यहाँ पे वर्ड टास्क है, कभी यहाँ पे वर्ड जो है दैट इज अ जॉब है, कभी है यहाँ पे प्रोग्राम है, तो ऑल आर द सिमिलर वर्ड्स, ओके। स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। टास्क मतलब इनपुट, मतलब प्रोग्राम्स, ठीक है। एवरी प्रोग्राम हैज अ प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनपुट, ओके, तो ऑल आर द सिमिलर वर्ड्स है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यस, okay, clear? Multitasking operating system clear, students? Now anyone has any doubt regarding multitasking operating system? Yes or no? मैम इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये नहीं पता चलता है। किसमें difference? मल्टीटास्किंग और ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मैम डिफरेंस क्या है? दोनों ही प्रोग्राम रन कर रहे हैं, दोनों में बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन, मल्टी प्रोग्रामिंग बोल रहे हो आप? मल्टी प्रोग्रामिंग बोल रहे हो? यस मैम। ओके ओके ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग। सी, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन के जो मेमोरी जो है, ठीक है, मेमोरी में क्या होगा? सपोज जॉब 1, यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, यहाँ पे कुछ स्कैन करना है, दिस इज फॉर स्कैनिंग, यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग करना है, ठीक है। तो जितना भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, जितना भी हमारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। मतलब मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम स्टोर होगा, मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स विल बी स्टोर्ड, बट सीपीयू क्या करेगा? पहले पूरा अपना डाउनलोडिंग का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा? स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग का काम कंप्लीट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू क्या एग्जीक्यूट करेगा? जो डाउनलोड के लिए रखा है वो, ओके। तो मेमोरी में मल्टीपल जॉब स्टोर हो रहा है, मल्टीपल इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं ना वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, बट सीपीयू क्या करेगा? अपना एक काम खत्म होने के बाद ही सेकंड खत्म होने के बाद ही थर्ड, दैट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग, ओके। बट इन मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल अगर हम यही फिगर को रिफर करें एज फॉर द मल्टीटास्किंग के लिए, तो जॉब 1 हो रहा है, ठीक है, तो मल्टी ऑपरेटिंग सीपीयू क्या करेगा? साइमल्टेनियसली जॉब 2 भी एग्जीक्यूट करेगा, जॉब 3 भी एग्जीक्यूट करेगा। जो भी प्रोग्राम्स हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स हम लोग ओपन करेंगे सीपीयू वो एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू विल एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंटिंग के लिए रखा है, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए कमांड दिया है तो वो प्रिंट भी निकलेगा। मैंने साइड में स्कैनिंग कर रही हूँ या तो फिर कुछ डाउनलोड करी तो डाउनलोडिंग भी मेरा होगा, साइमल्टेनियसली मैं सॉन्ग सुन रही तो सॉन्ग भी मेरा प्ले होगा, ओके। किसमें? इन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दी मल्टीटास्किंग, ओके। बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है? मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में जो है यूजर्स कैन गिव दी इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं, बट उनको यूजर को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा जब तक सीपीयू अपना एग्जीक्यूट नहीं करता तब तक। तो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा जो भी प्रोग्राम्स है, इनपुट्स है, उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू इन दी मल्टी प्रोग्रामिंग में। किसमें? मल्टी प्रोग्रामिंग में, दैट इज द डिफरेंस, ओके। इसको मल्टी प्रोग्रामिंग नेम क्यों दिया हुआ है? बिकॉज इन दी मेमोरी में मल्टीपल
inputs or multiple jobs, or you can say multiple programs can store. Okay, CPU में multiple program store, sorry memory में multiple program store हो जाएगा, but CPU उसका execute कैसे करेगा? One by one, simultaneously नहीं करेगा. Okay, clear? Okay, okay. Yes, in the next lecture, student, please come with the preparation of these types of operating system. Okay, ये सब पढ़ के आना आप लोग. Okay, मैं आपको ये notes दे दूंगी. Okay, तो just आपको समझ के पढ़ना है, रट्टा मार के नहीं आना है. Okay, yes, and this is a हमारा जो है multitasking. ठीक है, एंटीवायरस हम लोग इंस्टॉल करें तो इसको हम लोग रन करें तो वो भी रन होगा, ब्राउजर ओपन करें तो ब्राउजर भी साइमल्टेनियसली रन होगा, ईमेल कर रहे ईमेल भी होगा. ठीक है, वर्ड प्रोसेसर यूज करो वो भी रन होगा. दैट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. So this is the types of multitasking operating system: cooperative and primitive multitasking. Okay, now the next type of operating system, that is a real-time operating system. Okay, किसी को पता है what is real time operating system and कहाँ पे sorry कहाँ पे यूज होता यस है? मैम, थोड़ा थोड़ा पता है हाँ बताओ. मैम. जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कॉमनली नोन एज द RTOS. Yes. मैम ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो रैपिडली स्विच करता है बिटवीन टास्क. Okay, उसका आपको एग्जांपल पता है कि कहाँ पे यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? Okay, okay, I will explain. Okay, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के जहाँ पे एरिया के लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जो कोई एप्लीकेशंस है तो एरियाज उसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम को हम लोग मेन कंसिडर करेंगे. वैसे एरियाज हम लोग क्या यूज करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल, और यू कैन से एम्बेडेड सिस्टम्स. आपका जो एम्बेडेड सिस्टम्स है वो एम्बेडेड सिस्टम्स में क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. एम्बेडेड मतलब क्या कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर. ठीक है, हार्डवेयर में हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका एसी का रिमोट. ठीक है, एसी का रिमोट दैट इज वो हार्डवेयर है, उसमें क्या चिप सेट के बाद देन वी कैन प्रोग्रामिंग किया होगा उसके लिए, कोई वो हैंडल हो रहा है. आपका वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव, ऑल आर दी एम्बेडेड सिस्टम. वो क्या है? एम्बेडेड सिस्टम्स है. ठीक है, कि जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल आपने एसी का बटन प्रेस किया, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि जो आपने कूलिंग सेट कर रहे हो तो मोड चेंज पूरा आफ्टर 1 आवर आफ्टर 2 आवर होना चाहिए. नो, ऐसे नहीं. विद इन सेकेंड्स या तो उसका जो मैक्स टू मैक्स टाइम उसमें क्या होना चाहिए? एसी का जो भी आप टेम्परेचर सेट करो वो सेट हो जाना चाहिए रिमोट से. ओके, फॉर एग्जांपल ओवन में आप कुछ चेंज करे हो, मोड चेंज करे हो, कुछ भी आप करो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टाइम में हो जाना चाहिए. जो मतलब पर्टिकुलर टाइम इनपुट जो हम लोग दे रहे उसका आउटपुट, उसका रिस्पॉन्स जो है दैट वी विल गेट विद इन द पर्टिकुलर टाइम. ओके, उसका जो रिस्पॉन्स हमको मिलेगा, जो आउटपुट हमको मिला वो विद इन द टाइम मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, मतलब जो इवेंट्स जो है जो हैंडल करे उसमें टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. कैमरास, ठीक है, रोबोटिक्स में जो रोबोट्स है, ठीक है, उसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैमरा में आप पिक निकाल रहे हो, ठीक है, फोटो निकाल रहे हो. ओके, कैमरा इज एम्बेडेड सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप उसको पिक निकाले हो तो जैसे क्लिक किया वैसे फोटो आ जाना चाहिए. तो ऐसे नहीं कि आफ्टर हाफ एन आवर या तो आफ्टर 1 आवर के बाद 2 आवर्स के बाद फोटो आ रहा है. नो, जैसे क्लिक किया वैसे इमेज शुड बी कैप्चर्ड, फोटो शुड बी कैप्चर्ड आपका. ठीक है, so that is a real time operating system. ठीक है, that is a real time operating system. now अभी आप लोग ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, हमने कुछ डाउनलोडिंग के लिए रखा तो उसका थोड़ा इट टेक्स द टाइम, डिपेंड ऑन अवर मेमोरी या तो नेट स्पीड या तो प्रोसेसर पे डिपेंड होगा. ठीक है, तो डाउनलोडिंग के लिए 50 मिनट्स लग रहे हैं, 20 मिनट्स लग रहा है. अगर कोई बड़ा फाइल है तो इट ऑल्सो टेक्स द 1 आवर. ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, उसका साइज कुछ बड़ा है, एप्लीकेशन डाउनलोड उसका साइज बड़ा है, तो वो टेक टाइम्स, तो उसमें कुछ हमारे हमको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, चलो लेट हो रहा है तो हो रहा है, बट ओके. बट जो रोबोटिक्स है या तो जो एम्बेडेड सिस्टम्स जो है कि जिसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो टाइम में नहीं हुआ तो वो कोई यूज ही नहीं है उस सिस्टम का. तो दैट इज कॉल्ड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, is a computer operating system designed to handle events as they occur. जैसे हमने इनपुट दिया वैसे तुरंत उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए. Are designed to handle events as they occur.
क्लिक किया मोबाइल से पिक्चर या तो कैमरा, तुरंत पिक्चर आ जाना चाहिए। रिमोट हमने चेंज मोड चेंज किया एसी का वगैरह कोई भी, तो तुरंत इफेक्ट होना चाहिए। तो जैसे हम लोग कमांड दे रहे, जैसे इनपुट दे रहे, वैसे ही आउटपुट शुड बी डिस्प्ले और इवेंट अकर होना चाहिए। दैट इज a रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली फाउंड एंड यूज्ड इन रोबोटिक्स। कहाँ पर यूज होता है? मोस्टली वो रोबोटिक्स में यूज होता है, कैमराज में यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया एनिमेशन सिस्टम, ओके, जो एनिमेशन सिस्टम्स जो बनाता है उसमें, देन कम्युनिकेशंस, इन ऑल दिस थिंग्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड। ओके, यहाँ पे हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ओके, real time operating system is frequently used in car, military, government systems and other system that needs real time result, जिनको तुरंत मतलब जो रिजल्ट उनका जो है वो टाइम पे डिपेंड है। ओके, पर्टिकुलर टाइम में रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो ऑल दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग मतलब ये जो सॉरी इन दिस ऑल एरियाज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड। Okay, embedded operating system contains a bare minimum of components and are stored in ROM chip instead of hard drive। ठीक है, ये जो सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है मोस्टली वो जो बड़े बड़े डिवाइस में यूज नहीं, मतलब लैपटॉप है या तो विंडोज वैसे में यूज नहीं होता, वो कहाँ पे यूज होता है? जो स्मॉल स्मॉल डिवाइसेस है, और उसमें हार्ड डिस्क वगैरह नहीं होता, उसमें हम क्या होता है, चिप होता है। ठीक है, वो चिप में प्रोग्रामिंग फिट किया होता है। कौन सा चिप? उसको हम लोग बोलते हैं रोम, रीड ऑनली मेमोरी। रोम चिप में उसका प्रोग्रामिंग करके अब नाउ आपका जो एसी का रिमोट है या तो माइक्रोवेव जो आप सिलेक्ट करो या तो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें क्या है? चिप है, रोम चिप, रीड ओनली मेमोरी, उसमें प्रोग्रामिंग करके वो चिप को फिट किया हुआ है डिवाइसेस में। ठीक है, तो डिवाइसेस जो है वो स्मॉल होते हैं, कंपोनेंट जो है वो स्मॉल होता है, उसमें रोम रीड ओनली मेमोरी में प्रोग्रामिंग करके फिट किया हुआ रहता है। ओके, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन से, ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही यू कैन से। ओके, तो डेफिनेशन आपको और प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए तो मैंने लेके रखा है। सी ए डेफिनेशन, the definition of real time system is something happening now or something that is being broadcasted over the exact number of minutes, second or hour the event is taking। Okay, for an example of real time system is when journalists show live footage from an accident scene। ठीक है, वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो जो कैमरास वगैरह करके या तो फिर हमको जो ब्रॉडकास्ट करे, जो हमको टीवी पे दिखा रहे हैं, और दैट इज ऑल्सो ये कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जिसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो टाइम में नहीं हो रहा है तो वो सिस्टम को कोई यूज ही नहीं है। तो वो एरियाज में वी आर यूजिंग द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रोबोटिक्स, कैमरास, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स, ओके, मिलिट्री, गवर्नमेंट्स, ठीक है, देन ब्रॉडकास्ट, ये वेदर ब्रॉडकास्ट जो है, ठीक है, वेदर ब्रॉडकास्ट में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो ऑल दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Many operating systems such as Windows and Linux have embedded version। ठीक है, many operating systems, Windows and Linux have the embedded versions है, तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। अनदर एग्जांपल इंक्लूड ये all are the Chimera, Linux, MTOS, QNX, all are the real time operating systems। ठीक है, there are again 3 types operating real time operating system है। ओके, पहले तो व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया, कहाँ पर यूज होता है? यस और नो? Yes. ओके, ठीक है, तो अब जो आपका जो कभी कभी देखो जो वॉच है, ठीक है, उसमें भी टाइम्स वगैरह वेदर वगैरह दिखाते हैं ना, अभी जो स्मार्ट वॉचेस जो है, ठीक है, तो यू कैन उस वो दैट इज आल्सो एम्बेडेड, वो भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, तो एम्बेडेड में भी हम लोग रियल टाइम यूज करते हैं। ओके, तो टुमारो यू विल फाइंड कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एग्जांपल्स जो आप यूज करते हैं।